Hello friends, I again welcome you on my YouTube channel. So friends, I think it is not necessary to give my introduction in every blog. So today we will discuss only on, we will focus only on our topic. So friends, today our today's topic is section 24 Bharatiya Nyaya Samhita, and it was section 86 of IPC. So friends, let us see what this section says. This section says, section 24 Bharatiya Nyaya Samhita, in cases where an act done is not an offense. You can understand, where an act done is not an offense unless done with particular knowledge or intent. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. And this section says that a particular knowledge is required for committing some offense or some act. Particular knowledge or intention required for committing a particular act, and if any person take the defense that he was at the time of doing that act is intoxicated and he failed to understand that particular knowledge, yeah, or he has not applied his knowledge or at the time of commission of that act, then this defense is not available to him, because if he had knowledge of that and due to intoxication which he has taken voluntarily taking this defense, then this defense is not available. Only available if the intoxication is given to him forcibly or without his knowledge or against his will, then only he can take the defense of this section, that he is intoxicated by some substance which has been administered to him against his will and without his knowledge, and as such he could not apply his mind properly, then he can take the defense of this section, because he failed to understand that particular knowledge or particular act while he was doing that. Therefore this defense is available to him, unless the defense of this section is not available to him if he has intoxicated willfully and deliberately and knowingly drunken, then the defense of this section is not available to him. Let us friend, now we will discuss this section in our मातृ भाषा. तो फ्रेंड्स आइए अब मैं बताता हूँ दिस सेक्शन क्या कहता है. ये सेक्शन बोल रहा है कि अगर किसी भी कार्य को करने के लिए या ऑफेंस है उसको करने के लिए आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होता है, पर्टिकुलर इंटेंशन आपकी उसके लिए होनी चाहिए. अगर उस इंटेंशन से ही आप उस कार्य को करते हैं तभी वो गुनाह है. लेकिन आगे क्या बोलता है कि अगर आप नशे में हैं और जो नशा आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है और फोर्सिबली दिया हुआ है और आपको उसका नॉलेज नहीं था कि आप ये जो चीज़ ले रहे हैं ये नशा युक्त है या इससे नशा होएगा, तब आप डिफेंस ले सकते हैं कि हमें उस टाइम नशे में थे और ये पर्टिकुलर नॉलेज जो उस ऑफेंस और एक्ट को करने के लिए चाहिए वो हमें नहीं था. तो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन का डिफेंस ले सकते हैं. अब आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या है. एक तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन.
पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, मतलब पर्टिकुलर आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए या आपकी इंटेंशन होनी चाहिए उस कार्य को करने के लिए। जनरल नहीं है, वो सामान्य नहीं है, उसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, तभी दिस इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन। एंड सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटॉक्सिकेशन और इनवॉलंटरली ड्रंकननेस। इनवॉलंटरली ड्रंकननेस मतलब उस टाइम आपका जो ड्रंकननेस है वो अपनी इच्छा से नहीं है, वो ज़बरदस्ती आपको पिलाया गया है, या जब आपको पिया तो आपको ये पता नहीं था कि ये शराब है या इसमें नशा है, तो आप नशे में हैं, मतलब आपने जानबूझकर वो नशा नहीं किया है, तब भी आपको इसका डिफेंस मिल सकता है। वैसे तो डिफेंस है ही, क्योंकि उस एक्ट को पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, अगर वो नॉलेज नहीं है तब भी आप इसका डिफेंस ले सकते हैं। अगर आपने उस नॉलेज से और उससे किया है वो, तभी वो ऑफेंस है। अगर आप बोलते हैं कि मैंने शराब पी रखी थी या मैं नशे में था तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था या ये नॉलेज नहीं था, तो वो आपका डिफेंस नहीं चलेगा उस केस में। ये सेक्शन बोलता है, सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि पहले सेक्शन 86 यानी सेक्शन 86 था इंडियन पैनल कोड का। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में हमारे इतना ही है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते भी रहिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं कुछ और तरीके से समझाऊं जिससे आपको अच्छी तरह से समझाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए ताकि ये सब सारी दुनिया इसको देख सके और सबको इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज जो है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबको प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।